हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। अब पार्ट 2 आपको कब समझ में आएगा? जब आपने कौन सा पार्ट देखा होगा? पार्ट 1। हमने पार्ट 1 में चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, है ना। शुरुआत करने के साथ साथ हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी पढ़ ली थी। अगर अभी तक नहीं देखी है, फर्स्ट गो थ्रू दैट वीडियो, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, देन कम्स टू दिस वीडियो। ओके, तब आपको पूरा होल कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर का समझ में आएगा और चीजें क्लियर होगी। ठीक है। The topic of this chapter is, of course, we all know हम क्या पढ़ने वाले अबाउट चैप्टर का टॉपिक सबको पता है। ये देखिए क्या था चैप्टर 9 और नेम ऑफ चैप्टर इज हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड। हमने कुछ साइट्स, वर्कशिप साइट्स के बारे में डिस्कस किया, पिलग्रिमेज के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में बेटा हम शुरू करने वाले हैं अबाउट मोस्ट सेक्रेड साइट्स के बारे में, और कौन सी ऐसी पिलग्रिमेज साइट्स है जहां पे हम जाते हैं फॉर द वर्कशिप। ओके, so let's start. India is filled with sacred places beyond the famous temple and the river. These include caves, ponds, hills, forests, and even the entire city that hold religious or spiritual importance. ऐसी प्लेसेस, ऐसी जगहों के बारे में बात की गई है जहां पे अपनी उनकी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस होती है। These places may be connected to God, saints, or important events in history. On such places of अमरनाथ केव इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने अमरनाथ गए हो? जम्मू कश्मीर में है, ये भी इसके एग्जाम्पल्स है। सो ऑन सच प्लेसेस अमरनाथ केव इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज अ नेचुरल केव वेयर अ ह्यूज आइस फॉर्मेशन believed to be Lord Shiva appears every year. Thousands of devotees treks there to offer prayers. यहाँ पे लोग प्रेयर्स के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं बेटा? प्रेयर्स के लिए, ऑफर प्रेयर्स। Another example is the Golden Temple in Amritsar, which is sacred places of Sikhs and symbolizing equality, services and devotion. अमरनाथ, गोल्डन टेम्पल, ये सब जगहों पे हम क्यों जाते हैं? जस्ट बिकॉज हमें वहां पे पीस, काम, फॉर आवर स्पिरिचुअलिटीज। ओके, that's why we go there. Some sites are considered scarce. Varanasi on the bank of the river Ganga is one of the oldest and the most sacred sites in the world. People believe that dying there brings freedom from the cycle of birth and death. है ना, गंगा रिवर की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। सो बोध गया, where Lord Buddha got enlightenment under the Bodhi tree, is one of the pilgrimage sites from Buddhism फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सो ये जो साइट्स है, वाराणसी हो गई, गोल्डन टेम्पल हो गया, बोध गया हो गया, ये सारी की सारी सबसे फेमस साइट्स है हमारी फॉर अवर, अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजियस। ओके, सम sacred sites are linked to nature. Pushkar Lake in Rajasthan is the holy sites where the rare temples of Lord Brahma. The Sabrimala temple in Kerala is a deep inside the forest where people go after following strict rituals and fasting. Of course, Sabrimala temple में भी आप you cannot enter like this, है ना। They have, of course, जो भी temples है, religious institution है, वहाँ पे you have to follow some rituals. You have to follow their religious, their customs. Okay, then only you can enter in that places. Okay. Apart from these, tribal communities also have these sacred groves and stones where they worship ancestors and nature spirits. These are the important to identify and belief system. Of course, according to their belief systems, they can do all these things. Sacred sites can be big or small. Of course, ये जो जितनी sites है, ये छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, depending upon that. Okay, some are the famous, other known for the local people, but all are treated with respect and care. People go there to feel peace, get blessings, and remember their roots. Visiting such places keep the culture alive and reminds us from divine presence in our surrounding. हमको एक पॉजिटिव वाइब, डिवाइन वाइब, है ना, एक अच्छी वाइब वी कैन फील फ्रॉम दीज प्लेसेस। दैट्स व्हाई वी गो देयर। ठीक है, जिसमें हमने अमरनाथ, बोध, वाराणसी, गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी, ये सब साइट्स पढ़ी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। बिकमिंग अवेयर ऑफ
sacred geography. अब ये क्या है? ये क्या है हमारी ये ज्योग्राफी में about how these places are come together in our country. So sacred geography means understanding that the land around us can be holy. It includes places where people feel a strong spiritual connections, temples, rivers, forests, mountains, or any sites believed to be touched by the divine. Scared geography is not just by one religious alone, it comes from many beliefs, stories, and practices all over time. India is a land of sacred geography. The rivers Ganga flow through many holy sites. The Himalayas are not just mountains, they can be seen as a home of God and saints. Forests like Danda, Karanya are linked to Ramayana. है ना? Every region has places with stories of God, saints and miracles. जितनी भी जगह है ना उनकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अपनी अलग वी कैन से वैल्यू है ना? जैसे गंगा रिवर ही देख लीजिए, है ना? स्पिरिचुअलिटी के बेस पे वो कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना? आगे, to becoming aware of sacred geography means learning to respect these places. It means understanding that a mountain is not just a pile of rock, it could be seat of a god or a site of deep meditation. A tree might be hundreds of years old and worshipped by generation. People offer prayers, light lamps and whole festival of these places. ऐसा आपने देखा है, कोई रिवर है, कोई ट्री है, कोई एनिमल है जिसकी लोग बहुत पूजा करते हैं. देयर स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज्यादा होती है ना? उनकी वर्कशिप्स किया करते हैं वहां पे. जैसे अगर ट्री है तो उसमें दिया जलाते हैं, है ना? उसमें प्रेयर करा जाते हैं, ठीक है? So sacred geographies also tell us how people and nature live together in harmony. Sacred rivers are kept clean by those who worship them. Sacred trees are not just cut down. Sacred groves are protected because they are the homes to divine beings. Children can become aware of sacred geography by learning local stories, visiting these places, and asking elders about the meaning. Schools can teach about nearby sacred hills, ponds, or temples. This building is a deep connection with the land and culture. ये जो जगह है ना, ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन जगहों की. So by understanding this sacred geography, we can learn to treat the earth as a sacred too. It helps us protecting the environment and building respect for other cultures and their holy places. आप देखते हैं these जितनी भी rivers है, mountains है, इनको किस तरीके से हम कौन कौन सी है ये चीजें. So we can call about sacred, ecology, rivers and sangams, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट. तो इसमें हम रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सेक्रेड इकोलॉजी मीन्स seeing nature, river, forests, mountains are not just a natural elements but as living divine forces that deserves respect and protections. In Indian culture, many parts of nature are considered sacred. These ideas comes from the belief that the nature holds spiritual power and that God and the goddess live in the natural places. Let's begin with the river. अब सबसे पहले रिवर के बारे में देखते हैं. जैसे द गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी आर द मोर देन 5 रिवर्स. दे आर द गॉड. इनको पूजा की जाती है इन रिवर्स की. गंगा रिवर तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत पीढ़ियों से पहलों से ही उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, कल्चर इंपॉर्टेंस. गंगा का पानी स्पेशली लोग लेके आते हैं, गंगा जल छिड़क दो, है ना? हर ऐसी चीज पे, मतलब अच्छी बुरी, उन सब चीजों में इन रिवर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी एंड कावेरी, ठीक है? So people offer prayers, flowers and even lamps to the rivers. Of course इन रिवर्स में लोग लैम्प्स, फ्लावर्स, है ना, पूजा वगैरह, आप आरती वगैरह देखी होगी, गंगा आरती, है ना? तो उसमें ऑफ कोर्स पीपल डू अबाउट, है ना, उस तरीके से रिचुअल्स करते हैं. दे बिलीव दैट टेकिंग अ dip in the rivers washing away sins and bring blessing. Of course इन रिवर्स में अगर एक बार डिप ले लिया आपने, नहा लिया इस पानी से, तो बोलते हैं कि सारे जो भी हमने काम गलत किए हैं सो वो माफ हो जाते हैं. सो
the places where river meet is called संगम. जहाँ पे rivers meet होती है, चाहे एक river या दो river, so उसको संगम कहते हैं. And it seems high sacred sites. For example, the Triveni Sangam in Prayagraj is where the Ganga, Yamuna and the invisible Saraswati meet. So संगम जो बोला जाता है वहाँ पे तीन rivers का मिलन होता है, या त्रिवेणी संगम भी कहा करते हैं क्योंकि तीन rivers है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती. Millions of people gather during the कुंभ मेला. यहाँ पे काफी लोग आते हैं, है ना. अब माउंटेन्स में कौन से माउंटेन्स है जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिनका. सो माउंटेन्स टू आर द सेक्रेट्स. द हिमालयंस आर कंसिडर्ड द होम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मेनी अदर deities. Mount Kailash, also location in Tibet, is one of the most sacred peaks in the world and hold importance in Hinduism, Buddhism, Jainism and Bon Forest. Climbing in the forbidden because it is treated a divine. अब आप कैलाश हिमालयन रीजन्स देख लीजिए, इतने चैलेंजिंग है यहाँ पे क्लाइंब करना, इधर जाना, इट्स इम्पॉसिबल डे. ओके, so forests are often seen as abodes of gazes and gods. These are the places of meditation, silence and discovery. ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना. दंदा Karanaya forest from Ramayana and the Arayakara text from the Veda talk about the spiritual nature of the forest. Many forests are kept untouched because of their religious importance. Scarce ecology teaches us that protection nature is always a way to respect the divine. ऐसा बोला जाता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी अगर भगवान पे, तो आप नेचर को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, क्योंकि नेचर इज अ गॉड फॉर अस. नेचर ही नहीं रहा है तो हाउ वी कैन एबल टू सर्वाइव. नेचर गिव्स यू एवरीथिंग. सो फर्स्ट प्रोटेक्ट द नेचर if you really do worship of any god. Okay, when we pollute river or cut down forest, we also disrespecting the sacrednesses of the spaces. This belief that it is a strong way to protect the environment for the future generation. ये हमें future generation के लिए इस environment को protect करना भी बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है. ओके, चलिए. सो ये चीज समझ में आ गई आपको, रिवर्स, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग. अब ट्री फॉरेस्ट एंड द सेक्रेड ग्रोव्स. अब ट्री फॉरेस्ट, अब कौन कौन से ट्रीज, फॉरेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है. So the trees have always held a special places in Indian tradition. Tree की अपनी importance है हमारे Indian tradition में. Some trees are considered sacred because of their long life, usefulness or connections to religious stories. For example, the peepal tree is said to the home of gods, and the people often light lamps or tie threads around its trunk as a फॉर्म ऑफ प्रेयर्स. अब आप ये ट्रीज में आप एक चीज आपने देखी भी होगी कि इसमें ट्रीज को ना ऐसे थ्रेड से बांध दिया जाता है. ट्रीज पे ऐसे ऐसे मोली टाइप का मोली होती है हम, हाँ ना. तो ये अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है उसकी, है ना. आप पीपल ट्री, बनियान ट्री देख लीजिए, है ना. इनको हम पूजा करे जाते हैं, ट्रीज की पूजा, गाय की पूजा. तो सबसे पहले हमारे कल्चर हिस्ट्री के हिसाब से हमने ये कहा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा, आपको उनकी पूजा करनी है सबसे पहले. So the banyan tree, which is a wide branches and the aerial roots, seen as a symbol of a long life and wisdom. और ये आपको banyan tree भी इसी का symbolization है about wisdom and life. In many Indian villages and the tribal areas, there are sacred groves, small patches of forest that cannot be touched or cut down. These are called Dev-वन or Dev-rai. ठीक है, इन अ लोकल लैंग्वेज. देखिए देव-वन क्या होता है, ऐसे ट्रीज, ऐसा एरिया फॉरेस्ट का जो कट नहीं कर सकते, अनटच्ड है, आप वहां जाके कटिंग नहीं कर सकते. वहां पे लोग यही बिलीव करते हैं कि अगर आप ट्रीज को काट रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, सो यू आर हर्टिंग सम रिलीजियस बिलीफ ऑफ सम कम्युनिटीज. So people believe that these groves are the home to the forest of gods or ancestor spirit. इसलिए वो माना जाता है कि ये हमारे भगवान का घर है, ये फॉरेस्ट, इसको आपने कट नहीं करना. They protected these groves by setting rules: no cutting, no hunting and no loud noise. तो यहाँ जगहों पे ये लिखा होता है कि आपने नहीं कोई hunting, cutting and कोई loud voice यहाँ पे नहीं करनी है. ठीक है. So
Next है sacred groves are also important for the environment. They keep rare plants and animals safe, helping in keeping the air clean and preserve the biodiversity. ये हमारे biodiversity को preserve करते हैं, air को clean रखते हैं. Many groves have medicinal plants that are used in traditional healing because they can protect by religious beliefs. They are often better preserved than other forests. हमें देख रहे हो आप यहाँ पे जैसे तुलसी की पूजा की करते हो, हम सबके घर में होती है मोस्टली हिंदुइज्म ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं कि तुलसी हम पूजा करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं उस पे, है ना, हम हमेशा उस पे मोली बांधते हैं, है ना. सो ये हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स है, हमारे जो हम जिस भी कल्चर को फॉलो करते हैं, दे वी डू ऑल दीज थिंग्स इन इट. सो इन द टेम्पल्स यू विल बी फाइंड ट्रीज लाइक नीम, तुलसी और बिल्वा. These trees are not only sacred but also useful in daily life. Tulsi is used for worships and for medicines. The bilwa leaves is offered to Lord Shiva. तो यहाँ पे आप तुलसी, नीम इन सबको यूज किया करते हैं, और स्पेशली तुलसी फॉर द वर्कशिप पर्पस के लिए, फॉर वर्कशिप्स के लिए हम यूज करते, तुलसी का प्लांट हम ग्रो करते हैं ना. Even in the urban areas, people keep this sacred plants at home. They water them, pray near them, and see them as a part of a family. This respect for the trees help in building the care attitude towards the nature. The sacred groves and the trees teaches us how the spiritualities and natures go in hand in hand. They shows us that protecting the environment is not just a modern idea, it is rooted in our ancient tradition. ठीक है, ये चीज हमें बताती है अबाउट क्या चीज, ट्रीज, फॉरेस्ट के बारे में हमने देखा कि कैसे ट्रीज है, कैसे हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, क्यों प्रोटेक्ट करना है, कि लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे हमारे गॉड गॉडेसेस के इज द होम ऑफ दैट, सो वी शुड नॉट कट द ट्रीज, वी शुड नॉट कट द फॉरेस्ट. सो दे स्टार्ट दिस डे वन, है ना. नेक्स्ट उसके बाद कि ये जो फॉरेस्ट है, अब आप कट नहीं करें, उसकी एडवांटेज भी, आपको क्लीन हवा मिलेगी, आपका बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व रहेगी. एंड कुछ ऐसे प्लांट्स है तुलसी एंड नीम जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस बहुत है ना. और तुलसी वगैरह को तो हम रिलीजियस वर्कशिप्स पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, सो ये चीजें हो गई, हमने देख ली. अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड. अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बढ़ावा हो रहा है, मतलब देखो आप ऐसी पिलग्रिमेज साइट्स में लोग अपने व्यापार शुरू कर दिए, छोटे छोटे स्टॉल शुरू कर दिए. जैसे कुंभ मेला में बहुत हुआ था, लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टॉल शुरू कर दिए थे, एंड दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट, क्योंकि ऐसी जगहों से लोग फिर खरीदते भी है, क्योंकि इस जगहों पे लोग टूरिस्ट बहुत आते हैं. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग पूजा की जो शॉप्स होती है वो ओपन कर देते हैं लोग, है ना, कि वहां से आके लोग सामान लेंगे फिर. So in the ancient times, these sacred places were not just centers of worships; they also become center for trade and culture exchange. When people travel long distances in the pilgrimage, they needed food, shelter, clothes, gifts for offering and more. Of course, जब यहाँ पे लोग वर्कशिप करने के लिए आएंगे तो इनके आसपास ना आपने देखा होगा खाने की दुकानें बहुत होती है, जहाँ पे ये पूजा के सामान मिलते हैं वो दुकानें होती है, होटल्स बहुत होते हैं, है ना, क्लोथ्स की दुकानें होती है. मगर उनको पता है लोग जो आएंगे वो वहीं होटल्स में रुकेंगे, कहीं आसपास से खाएंगे, है ना. तो वहीं पे उस एरियाज में जहाँ पे वो टेम्पल है या कोई मॉस्क है या फिर कोई गुरुद्वारा है, वहां पे ये चीजें आपको मिलेगी जो फेमस है. तो वहां पे क्या है, इन चीजों की वजह से ट्रेड बढ़ावा, लोगों की बिजनेसेस ग्रो किए. So this needs to lead the development of small markets and towns near the temples and in the holy rivers. So इसलिए वहां पे एक ट्रेड का बढ़ावा हुआ इस वजह से. So, for example, the cities of Varanasi, one of the oldest sacred sites in the world, becomes a hub of a trade in silk, perfume, and religious items. People visiting temple could buy small lamps, flowers, clothes for the dignities, and offer food. Artisans begins to settle near these holy sites and create beautiful sculptures, painting, and craft. In the South India, great temples like the Madurai, Tirupati, or कांचीपुरम became the center for the workshops and business. So ये जो टेम्पल स्पेशली साउथ इंडिया के टेम्पल्स बहुत फेमस माने जाते हैं. तो मदुरई, तिरुपति, है ना, कांचीपुरम, ये ना काफी इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स बन गई फॉर द ट्रेड. Festivals brought huge crowds. The local peoples benefited by selling items on or renting rooms, sometimes keeping kings, bills, roads, and we also call dharmshalas to help pilgrimage.
These roads connected far off places and allowing the exchange of goods and ideas. तो यहाँ पे लोग आया करते थे, है ना, इन साइट्स में. नेक्स्ट है, ओवर टाइम पिलग्रिमेज रूट्स बिकम ट्रेड रूट्स. ऑफकोर्स यहाँ से अभी ऑफकोर्स इनके रूट्स भी काफ़ी अब अच्छे हो गए हैं. इनकी फैसिलिटीज़, अब आप वैष्णो देवी जाएंगे, पहले वो फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी जो आज के टाइम पे है ना. सो इनके रूट्स अच्छे बना दिए गए ताकि, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल सिल्क रूट which connected India to China and the Middle East was not only used for trade but also spread religious, especially Buddhism. Monasteries and temples grew along the path, helping pilgrimage and trade alike. Okay, this connections between the sacreds and the economy continues even today. Holy places boost local economies through the tourism. People buy souvenirs, stay in hotels, eat in restaurants, and take back gifts. This pilgrimage is not fulfilling the spirituality needs, but also strengthening social and economic bond. It shows us how religious culture and livelihood can grow together. ये हमें बताता है किस तरीके से हमारा कल्चर, हमारा रिलीजियस, हमारा इकोनॉमी बूस्ट अप हो पाएंगे, कनेक्टेड हो पाएंगे, हम ग्रो कर पाएंगे, बोथ इन द टर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बोथ इन टर्म ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन एरियाज में ट्रेड बूस्ट अप हुआ है, ज्यादा हुआ है. ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ सेक्रेड ज्योग्राफी बियॉन्ड इंडिया. अब ये तो इंडिया में देखिए कौन कौन सी जगहें हैं. अब इंडिया से बाहर कौन कौन सी अच्छी जगह है जहां पे लोग वर्कशिप्स करने जाते हैं. सो द आइडिया ऑफ दिस sacred lands is not limited to India. Many cultures across the world have places they consider holy or spiritual. These sacred sites are treated with great respect and are often visited by people from far and wide. In Mecca, Saudi Arabia, millions of Muslims gather here for the Hajj pilgrimage. Mecca is believed to be birthplace of Prophet Muhammad and is the holiest site of Islam. Islam की ये मक्का मदीना सबसे फेमस, सबसे होलियस्ट प्लेस मानी जाती है. In Jerusalem, sacred to Jews, Christians and Muslims, there are important religious landmarks like the Western Wall, Church of the Holy Sepulchres and the Ai Aqsa Mosque. In the Tibet, Mount Kailash is sacred to Hinduism, Buddhism and Jainism. Many believe it is the home of Lord Shiva or the cosmic center of the universe. Similarly, Lake Mansarovar nearby is considered the sacred and pilgrimage center of the world. In Japan, Shinto religious teaches the spirit called Kami live in the mountains, rivers and forests. यहाँ पे हम ना अब फॉरेन के बारे में देखें. फॉरेन्स में ऐसे कौन से फेमस टेम्पल्स, मॉस्क, फेमस साइट्स, फेमस गुरुद्वाराज है जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं. जैसे अब यहाँ पे माउंट कैलाश हमने पढ़ा, हज पढ़ा, मक्का मदीना पढ़ा, है ना. जापान में आपको शिंटो रीजन का एक कामी माउंटेन पढ़ा जहाँ पे people worships it. Okay, people often tie small paper wishes to scarce trees or places often near waterfall and stones. In Africa, tribal communities have sacred forests and mountains. The Mount Kilimanjaro in Tanzania is believed by local tribes to be home of God. In the Amazon rainforest, indigenous tribes protected scarce lands where they believe that these ancestors and the spirits live together. In Europe, ancient sites like Stonehenge in England, in Delhi in Greece were once worships and ceremonies. These places shows that in the past people connected land with dignity. But studying scarce geography around the world, we learn that the love and respect for nature and divine, it is a universal idea to help us to understand and respect other cultures and the spiritual practices. अब देखते हैं हम इसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं. हमने देखी इतनी इतनी पिलग्रिमेज साइट्स है ना, इतने इतने हमारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग वर्कशिप्स करने जाते हैं, तो इनको प्रिजर्व करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो हाउ वी कैन प्रिजर्व इट. सो ओवर टाइम many sacred places have been damaged by pollutions
over visitations and neglects. River one considered holy are now filled with garbage. आजकल जो rivers की जब हम पूजा कर रहे हैं, इनको आज garbage की तरह हम मान लिए. यहाँ पे इतनी garbage है, इतना गंदा हो गया है ना. So forests once protected as scarce groves are being cut down. Shrines and temples are sometimes misused or poor maintenance. That is why we must now focus on restoring and conserving these places. Restoring means bringing something back to its original beauty and respect. Of course, restoring means हमें जो आजकल के टाइम पे rivers है, हमारे temples है, हमारी ये जो pilgrimage sites है, ये polluting हो रही है, damage हो रही है, खराब हो रही है, इसको हमें conserve करना है, रिस्टोर करना है. रिस्टोरिंग मतलब होता है किसी को पहली जैसी चीज में वापस लेके आना, ओरिजिनल ब्यूटी उसकी लेके आना. सो कंजर्विंग मीन्स प्रोटेक्टिंग इट सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट ग्रेटनेस. Scared sites are not only religious spots but also culture and environmental treasure. When we save them, we save our history, our stories, and our identity. Several efforts are made to restore scarce rivers. For example, Namami Ganga project is a government-led effort to clean river Ganga. Many volunteers and NGO work to remove waste and educate people about keeping river clean. ठीक है, आजकल के एनजीओज बहुत वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत वर्क कर रही है लोगों को ये बताने के लिए, स्पेशली रिवर्स में, क्योंकि रिवर्स में लोग क्या करते हैं, अपना जो भी रिलीजियस का जो सामान होता है उनको लगता है कि ऐसे नहीं हम रिवर में फेंक देते हैं. अब वो रिवर में भी तो जाएगा तो वो इट्स नॉट गुड ना फॉर रिवर टू थ्रो मूर्तिज और आपका पूजा का जितना भी सामान है ना, तो लोग उसमें डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से रिवर्स का हाल इस तरीके से हो रखा है. देख रहे हो आप, ये रिवर गंगा है, ठीक है, जिसको इतना पवित्र, इतना प्योर माना जाता है. सो इस तरीके से बहुत सारे एनजीओज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है आज के टाइम पे, जो इन रिवर्स को क्लीन अप कर रही है. कम्युनिटीज ऑल्सो reviving scarce groves by planting native trees and protecting animals. Some schools and villages have made rules to stop the cutting of the trees near temples and pools. In cities, people plant scarce trees like tulsi and neem in the park and the trees, and in the temples normal tulsi and neem को लोगों अपने घरों में, temples में grow करते हैं because उसकी religious importance है. Religious leaders can also help by teaching them caring for the nature is a part of devotion. They can guide people to keep the surrounding clean and avoid pollution during the festival. ये उनको बताते हैं, कभी ऐसी फेस्टिवल होता है, दिवाली है ना, हम अपने इस नेचर को पोल्यूट ना करें, है ना. सो नेचर को कंजर्व कर लेंगे, दैट मीन्स यू आर कंजर्विंग योर ओन रिलीजियस बिलीफ. Okay, so even today can help by doing a small projects, cleaning a local pond, planting trees near temples, or making posters to spread awareness. Scared places belong to all of us. If we take small steps, we can protect their beauty and meaning. अगर हम छोटे-छोटे steps भी लें तो हम अपनी इस beauty को, हम अपने इस places को बचा सकते हैं. In conclusion, restoring scarce lands is not just about building or rivers. It is about renewing our relationship with nature and the divine. By doing so, we show respect for our past and hope for the better future. अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ही अच्छी चीज है. ठीक है, तो ये चीज थी, हमने पूरी के पूरे डिस्क्राइब की. आई नो थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर था, बट आपने कितनी सारी चीजें इसमें पढ़ी है ना, कि क्या चीजें हैं, कैसे वर्कशिप्स किया जाता है, लोग कैसे करते हैं, क्या क्या रिलीजियस बिलीव होते हैं. अब ये जितने बिलीव्स को हम मानते हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, इनको कंजर्व करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो ये चीज आपको समझ में आई? ओके, नाउ ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. अब यहाँ पे आपके लिए समरी दे रखी है, जो समरी हमने अभी पढ़ी है, जो चैप्टर है वो उसकी समरी दे रखी है. अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स. स्टार्ट करें, चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following river is believed to meet at Triveni Sangam? कौन सी रिवर है? गंगा, यमुना and सरस्वती. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, the city known as one of the oldest and the most sacred sites in the world. कौन सी सिटी को बोला जाता है? Of course, the वाराणसी सिटी.
is known as the most oldest and the most scared sites. Okay, next, that is the third one. Which of the following sacred mountain located in Tibet? तिब्बत में कौन सा माउंटेन है? माउंट कैलाश. ठीक है, अभी पढ़ा था माउंट कैलाश के बारे में. नेक्स्ट, that is the fourth one. That is the practice of typing thread around the neem tree symbolized. ये क्या symbolize करती है? आपकी protecting from evil or removing the fragments. Of course, ये हमें बुराई से है ना, मतलब they protects us. That's why we put thread around the people tree. Okay. Next, fill in the blank is a patch of forest protected due to religious belief. इसको क्या कहते हैं? Sacred grove. जब हम एक protected, एक ऐसा एरिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं just because of our religious belief के अकॉर्डिंग, है ना. नेक्स्ट, अब हम करते हैं कुछ fill in the blanks. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है the places where two or more rivers meet. जहां पे two or more rivers meet करती है, the places is known as confluences. Okay. Next, sacred groves are protected by. कौन प्रोटेक्ट करता है? पीपल प्रोटेक्ट करते हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. नेक्स्ट, माउंट कैलाश इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द फोर रिलीजियस इंक्लूडिंग. कौन कौन से रिलीजियस यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं? ऑफकोर्स हिंदुइज्म, बुद्धिज्म. ठीक है, सो हिंदुइज्म एंड मेन बुद्धिज्म है माउंट कैलाश रिलीजियस को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट, फोर्थ, द सेक्रेड ट्री इज नोन फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज. कौन सी ट्री, कौन सी, किसकी एक हीलिंग प्रॉपर्टीज मानी जाती है? पीपल की. ठीक है, तभी हम वी आर डूइंग वर्कशिप फॉर दैट. नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक मेला. कौन सा मेला? इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये मेले की बात हो रही है, दैट इज कुंभ मेला. ठीक है, so that is Kumbh Mela. Next, my dear learners, we will do the true and false. Okay, so we will do true and false. First question is that the sacredness is only related to one religious and not for the nature. No, false. हम किसी भी चीज की वर्कशिप कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम किसी गॉड की, नहीं, नेचर भी उसमें इंक्लूड होता है. ठीक है, अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग आवर वर्कशिप्स. ओके. नेक्स्ट, सेकेंड, द पिलग्रिमेज हेल्प बोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लोकल कम्युनिटीज. बिल्कुल सही. अगर ऐसी कुछ साइड है, पिलग्रिमेज साइट्स है, वो बोथ रिलीजियस एंड आप ये कहें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रेड को भी बढ़ावा देती है क्योंकि ऐसी साइट्स पे शॉप्स वगैरह होती है तो वो बूस्ट अप होती है. थर्ड इज ट्रीज लाइक तुलसी एंड नीम आर कंसिडर सेक्रेड इन द इंडियन कल्चर. बिल्कुल, ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस है, ये दोनों ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट है सेक्रेड ग्रोव्स आर ऑफन क्लियर टू बिल्ड हाउसेस. बिल्कुल ठीक है, कभी कभी हाउसेस बिल्ड करने के लिए हमें ऐसी जगहों पे कटिंग एंड ये सब करना पड़ता है ना. नेक्स्ट, फिफ्थ है द हिमालयंस आर कंसिडर्ड द होम ऑफ लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा के लिए होम रहता है. बिल्कुल सही. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, ये जो ऐसी जगह है ना, वहां पे हम उन जगहों को प्रोटेक्ट करते हैं. वी आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, क्योंकि हमारा ये मानना क्या था कि अगर हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, दैट मीन्स क्योंकि फॉरेस्ट होम है हमारे गॉड गॉडेस का, सो अगर हम वो बचा रहे हैं, दैट मीन्स हम जो रिलीजियस, जिस भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, हम उसको, उनमें ये लिखा है, ठीक है, कि अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग द गुड थिंग. ओके. अब कुछ मैचिंग दिए गए हैं, चलिए मैच करते हैं. सबसे पहले पीपल ट्री. पीपल ट्री ऑफ कोर्स ये वर्कशिप के लिए यूज किया जाता है, सो वी डू वर्कशिप्स इन दिस. अब माउंट कैलाश. माउंट कैलाश किसका होम था? लॉर्ड शिवा का. ठीक है. कुंभ मेला. कुंभ मेला जो हर 12 साल बाद लगता है. त्रिवेणी संगम जो आपके गंगा, यमुना एंड सरस्वती रिवर के मीटअप से बनता है. गोल्डन टेम्पल, ये सिख की पिलग्रिमेज साइट है. सिखिज्म में गोल्डन टेम्पल की अपनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ये मैचिंग हो गई. अब करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केयर्डनेस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू नेचर. देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ये कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, अगर हम इन साइट्स में जाते हैं
दैट मीन्स हम यहाँ पे जो भी वर्कशिप्स करने जा रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द नेचर, है ना, क्योंकि हमें एक पीस, एक कामनेस, है ना, ये सारी चीजें हमें कब मिलती है, व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द नेचर, ठीक है। इसलिए ये जितनी भी साइट्स होती है वर्कशिप्स की, कोई टेम्पल्स है, कुछ ऐसी शांत जगह, है ना, और ऐसे होता है कि हम वहां जाके हमें ऐसा लगता है कि हम नेचर से कनेक्ट हो गए, ठीक है। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू थिंग, ओके। नेक्स्ट इज व्हाई आर द sacred groves importance in Indian villages and tribal areas। देखिए ये ऐसे एरियाज होते हैं, सबसे पहले sacred groves एट ऐसे एरियाज होते हैं जो फॉरेस्ट, जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिन फॉरेस्ट को कटिंग नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि वहां के हिसाब से होता है कि वहां पे इस थिंकिंग, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था कि ऐसा माना जाता है कि वहां पे गॉड रहते हैं। सो वो जो एरिया पीपल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कट नहीं होने देते थे फॉरेस्ट को, दे आर नोन एज सेक्रेड ग्रोव्स, ओके। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों विलेजेस के इंपॉर्टेंट? सबसे पहले अगर हमारा फॉरेस्ट कट नहीं होता है, सो दे गिव अस क्लीन एयर, दे कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, दे गिव्स लॉट्स ऑफ थिंग लाइक वुड, मेडिसिन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू पिलग्रिमेज हेल्प लोकल कम्युनिटीज। देखिए जो पिलग्रिमेज साइट्स होती है ये लोकल कम्युनिटीज को कैसे हेल्प करती है? सबसे पहले उसको ट्रेड में हेल्प करती है। वहां पे जो शॉप्स होती है वो डिपेंड ही इन पे होती है। अगर यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं सो उनकी अर्निंग ज्यादा होती है, दैट इज अ मेन थिंग, है ना। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ डू sacred rivers influences ecological awareness in India। देखिए जितनी भी रिवर्स है, सबसे पहले ऐसी रिवर जो होली रिवर्स, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, सो इनकी इकोलॉजिकल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी कंजर्वेशन, है ना, भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ sacred geography and explain its importance in Indian culture। ऑफ कोर्स इसकी ज्योग्राफी क्या इंपॉर्टेंस, देखिए हमने ये पढ़ी थी ज्योग्राफी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर हम बात करें इंडिया में, ठीक है, ये देखिए हाँ दिस थिंग, हाँ हाँ गया, हाँ ये तो बियॉन्ड इंडिया है कि कौन कौन सी चीजें बियॉन्ड इंडिया है आपकी, है ना, माउंट कैलाश, मक्का, है ना, ये सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आगे है बेटा थर्ड, कंपेयर sacred geography in India with the example of one or two parts of the world। अब इंडिया में कौन सी ऐसी जगह हैं, जैसे अगर हम बात करें वैष्णो देवी की, अमरनाथ की, गोल्डन टेम्पल की, और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑफ कोर्स अलग अलग रिलीजियस में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है इन सबके, है इन सबकी जितनी भी साइट्स बनाई गई है। नेक्स्ट इज what steps are being taken to restore and conserve these scarce places। देखिए सबसे पहले तो डिफरेंट एनजीओज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन इट, ताकि वो इन एरियाज को प्रोटेक्ट करके रख पाए, यहाँ पे डर्ट ना हो, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिले, यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, है ना, टूरिस्ट को। सो डिफरेंट एनजीओज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू प्रिजर्व दीज साइट्स, लाइक नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स, है ना, जो रिवर को, गंगा रिवर को प्रोटेक्ट कर रही है। सो ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।